بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مالک مکان آیا تھا، کہہ کر گیا تھا کہ آپ لوگ 2 مہینے کرایہ نہیں دیتے ہو، اگر اس مکان میں رہنا ہے تو ہر مہینے کرایہ دینا ہوگا ورنہ مکان خالی کر دو۔ وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا، مگر میں پریشان تھی، کیا ہوگا، ہم کرایہ کہاں سے بھریں گے؟ پچھلے ماہ اسی وجہ سے کرایہ نہیں دے سکے تھے کہ میری تیسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس مہینے اس وجہ سے کرایہ نہ بھر سکے کہ میری دونوں بڑی لڑکیوں کو چکن پاکس نکل آئی تھی، اس وجہ سے سارا پیسہ بیماری میں اٹھ گیا۔ میرے شوہر کا نام ماجد ہے، ہم سفید پوش لوگ ہیں۔ میرے شوہر کی تنخواہ 25,000 روپے ہے، اس میں مکان کا کرایہ، بجلی، سوئی گیس، ٹیلی فون کا بل، آنے جانے کا کرایہ، اسکول کی فیس، گھر کا سودا، روز کی دال سبزی وغیرہ، اور اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا خرچہ بھی ہم جیسے سفید پوش لوگوں کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ اوپر سے میری 3 بیٹیاں ہیں، اللہ کی نظر میں بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، مگر زحمت جب بن جاتی ہیں جب ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، شادی کا لمبا جہیز دو، مگر قسمت نہیں دے سکتے۔ میرا نام سریہ ہے، بیٹے کی چاہ مجھے شروع سے ہی تھی۔ جب میری بڑی بیٹی ہنا کی پیدائش ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ کاش مجھے پہلے بیٹا ہو جاتا پھر بعد میں بیٹی۔ خیر اللہ کی رضا سمجھ کر خاموش ہو گئی اور اپنی بیٹی کو قبول کر لیا، مگر بیٹے کی چاہ میرے دل سے نہ جا سکی۔ میری نمازیں اور لمبی ہو گئیں، ہر نماز میں میں نے صرف بیٹے کی دعا مانگی۔ پھر دوسری بیٹی ہما کی پیدائش پر میری آنکھوں کے آنسو رکتے ہی نہ تھے، اور زبان پر شکوہ تھا کہ یا اللہ ایک بیٹے کی ہی تو چاہ کی تھی، تو مانگنے پر ہر ایک کی جھولی بھرتا ہے، میری جھولی کیوں خالی ہے آخر؟ خیر اولاد تھی، قبول کر لیا، مگر تیسری بیٹی مینا کی پیدائش پر میں حیران رہ گئی، کیونکہ خدا نے میری دعا قبول نہ کی اور 3 بیٹیاں عطا کر دیں۔ شاید میری دعا میں سلیقہ نہیں، وہ تڑپ نہیں، وہ جنون نہیں جو مجھے ایک بیٹے کا فخر دے سکتا۔ اب میرے شوہر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم مزید اولاد پیدا نہیں کر سکتے، ان تینوں کی پرورش اچھی کر لی تو خدا کے آگے سرخرو ہو جائیں گے۔ اب اللہ سے یہ دعا مانگو کہ ان تینوں کا نصیب اچھا کرے، بیٹے کی خواہش ترک کرو اور دعا کرو کہ اللہ ہمیں اچھے داماد عطا کرے، وہی ہمارے بیٹے ہوں گے۔ میں اپنے شوہر کو دیکھنے لگی کہ کیا واقعی بیٹا ہمارے نصیب میں نہیں ہے، اور واقعی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر اس بار میں نے ضد کی اور بیٹی پیدا ہو گئی تب کیا ہوگا؟ آج کل کے زمانے میں 1 یا 2 بچوں کی پرورش مشکل ہے، پھر میرا تو 3 بیٹیوں کا ساتھ تھا، میرے شوہر جتنا کماتے اتنا ہی خرچ ہو جاتا، کچھ بچتا نہیں تھا۔ میں سوچتی میں اپنی بچیوں کی شادی وغیرہ کیسے کروں گی؟ کیا ساری زندگی میرے شوہر محنت کرتے رہیں گے؟ انہیں کبھی آرام نہیں ملے گا؟ اگر آمدن کا اچھا ذریعہ ہوتا تو میں کچھ پسنداز بھی کر لیتی یا کوئی پالیسی وغیرہ لے لیتی، مگر کوئی آمدن کا ذریعہ ہی نہ تھا۔ میں تو بس یہ دعا کرتی کہ کوئی بیمار نہ پڑ جائے، کہیں اس کا خرچ شروع نہ ہو جائے۔ میں کھینچ تان کر گزارا کر رہی تھی، بچوں کو گھمانا پھرانا تو ایک خواب تھا۔ کبھی ہم اچھا سا کھانا پکا کر محلے کے پارک میں چلے جاتے اور وہاں بیٹھ کر انجوائے کرتے۔ بڑی جگہوں پر جانا ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، کسی بڑے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے بھی نہ جا سکتے تھے، بس فٹ پاتھ پر بنے ریسٹورنٹ میں کبھی کبھی کھانا کھا لیتے، یا جب کسی بچی کی سالگرہ یا بچوں کی پاس ہونے کی خوشی یا عید کا دن وغیرہ ہوتا تو پھر سارا مہینہ ان پیسوں کا غم مناتے کہ اتنا خرچہ ہو گیا۔ مہینے کے آخری دنوں تو ٹھیلے کے برگر، گول گپے، چھولے چاٹ کی اوقات بھی ختم ہو جاتی، اوپر سے بیٹے کی چاہ میرے دل سے ختم نہ ہوتی تھی۔ کسی کی گود میں بیٹا دیکھتی تو خواہش اور بڑھ جاتی کہ کاش میرا بھی ایک بیٹا ہوتا، مگر میں اپنے آنسو پی کر رہ جاتی۔ خدا کی رضا میں راضی تھی مگر خوش نہیں تھی۔ دونوں بڑی بیٹیوں ہنا اور ہما کی سکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھیں، وہ اپنے ابا سے ضد کر رہی تھیں پارک جانے کی، مگر وہ اپنے روٹین والے پارک میں نہیں جانا چاہتی تھیں، وہ کسی دوسرے پارک میں جانے کی ضد کر رہی تھیں۔ پارک تو بہت سارے تھے مگر تھوڑے دور تھے، دوسرے پارک میں جانے کے لیے کرائے کی ضرورت تھی اور فالتو خرچہ کرنا ہمارے بس میں نہ تھا، مگر آج بچوں کی ضد نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم کسی دوسرے بڑے پارک میں چلے جائیں۔ خیر ہم ایک نئے پارک میں آ گئے، وہ بہت بڑا اور خوبصورت پارک تھا، مگر حیرت کی بات تھی کہ وہاں لوگوں کا اتنا رش نہیں تھا، چند لوگ ہی تھے۔ پارک میں بچوں کے جھولوں والا حصہ تو ویران پڑا تھا۔ میری بیٹیاں اتنے سارے جھولے دیکھ کر خوش ہو گئیں، وہ جھولے جھولنے لگیں، ہم بھی پارک پر تبصرہ کرنے لگے۔ پارک تو بے حد اچھا ہے مگر لوگوں کی رونق نہیں ہے، خالی پڑا ہے۔
बच्चों की झूले वाली साइड पर तो कोई है ही नहीं। मेरे शौहर भी बोले, हमें क्या, हमारी बेटियां तो खुश हैं, इंजॉय कर रही हैं, जिस झूले में चाहे झूल रही हैं, वो तीनों खुश तो हम भी खुश। हम दोनों मुस्कुराने लगे। फिर हम इधर उधर की बातें करते हुए बच्चों पर भी नजर डाल लेते। तीनों बेटियां तितलियों की तरह घूम फिर रही थीं। उनकी खुशी देखकर हम दोनों भी उतना ही खुश हो रहे थे जैसे हम भी झूलों को एंजॉय कर रहे हों। अचानक मेरी बड़ी बेटी मेरे पास आई और बोली, मम्मा, उस झूले के पास से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। हम दोनों अपनी बेटी के साथ उस झूले के करीब गए। वो स्लाइड टनल थी। उसके खोल में एक बास्केट रखी थी जिसमें से बच्चे की आवाज आ रही थी। मेरे शौहर ने बास्केट निकाली और उसका ढक्कन उठाया तो उसमें बेहद खूबसूरत बच्चा था। मेरे शौहर ने बताया, लड़का है, मगर कौन छोड़ गया इतना प्यारा और खूबसूरत, वो भी लड़का। लड़के का लफ्ज सुनकर मैंने लपक कर उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। वो मेरी गोद में आकर चुप हो गया और मुझे यकटिक देखने लगा। मैंने बेइख्तियार उसे चूम लिया। मुझे उस बच्चे पर बहुत प्यार आ रहा था। मेरे शौहर बोले, पता नहीं ये किसका बच्चा है, कौन इसे यहां छोड़ कर गया है। वो और भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। वो लोगों से पूछ रहे थे, चौकीदार से पूछ रहे थे, मगर किसी को इल्म ही ना था कि वो बच्चा आखिर किसका है और कौन उसे यहां छोड़ कर गया है। आखिर उस बच्चे की कागजी कार्रवाई शुरू हुई। फिर पुलिस ने कहा कि इसे ईदी होम में दे देते हैं। मेरा दिल उस बच्चे से जुदा होने को कतन नहीं चाह रहा था। फिर मेरे दिल ने फैसला कर लिया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये बच्चा गिफ्ट किया है। ये उस इबादत, उस नमाज, उस दुआ का कमाल है जो मैंने अल्लाह से मांगी थी। अल्लाह ने मुझे बेटा दे दिया, चाहे वसीला कुछ भी बनाया हो। उसका कोई दावेदार नहीं था, तो फिर ये मेरा ही बच्चा हुआ ना। मेरा बेटा, मेरी जान, मेरी आंखों का नूर, मेरा बच्चा। मैं बेतहाशा उसे प्यार करने लगी। वो भी ऐसे मुस्कुरा रहा था कि जैसे वाकई वो मेरा ही बेटा हो। मेरे शौहर ने मेरा प्यार और बेटे की तड़प देखकर बच्चे की कस्टडी अपने हाथ में ले ली। हम बच्चे को अपने घर ले आए। मेरी बेटियां भी अपने भाई को देखकर खुश हो रही थीं। मेरे शौहर खुश थे मगर खामोश थे। आप इतना खामोश क्यों हैं? मैंने आखिर पूछ ही लिया। सुरैया, तुम्हारा प्यार देखकर डर लग रहा है। अगर किसी और का बच्चा हुआ और वो लेने आ गया तो तुम्हें देते हुए दुख होगा। कुछ नहीं होगा, ये मेरा ही बेटा है। अल्लाह ताला ने ये मुझे गिफ्ट किया है। ये मेरी दुआओं का फल है। हमने उसका नाम अरमान रख दिया और हम हंसी खुशी रहने लगे। मुआशी परेशानी तो थी ही हमारे साथ, मगर पता नहीं क्यों अब मैं उन परेशानियों से घबराती नहीं थी। अपने बेटे की मोहब्बत में अब मुझे ये परेशानी भी नजर नहीं आती थी। अपने बेटे अरमान में एक बात देखी, वो सारा दिन हमारे साथ रहता, मगर जब सोना होता तो उसे नींद उस बास्केट में ही आती थी। जब वो नींद से बेचैन हो जाता तो मैं उसे बास्केट में लिटा देती। वो आराम से सोता रहता। आज फिर मालिक मकान आया था किराया मांगने। तीसरा महीना होने को आया था। हमने किराया अदा नहीं किया। वो बहुत गुस्से में था। बोला, कल शाम तक आप लोगों ने 3 महीने का किराया अदा न किया तो ये मकान खाली करना होगा। मैं पुलिस को भी लेकर आऊंगा। देखता हूं कि कैसे मकान खाली नहीं करते हो तुम लोग। उस महीने हमें अरमान, हमारा बेटा, मिल गया था। उस वजह से उसके कपड़े, दूध वगैरह पर काफी खर्च हुआ था। 5,000 रुपए रखे थे, मगर मकान 10,000 रुपए महीने का था। ऊपर से 3 महीने का किराए का मतलब था कि 30,000 रुपए। कहां से आएंगे 30,000 रुपए? क्या होगा? मैं इसी फिक्र में गलता थी कि मेरे शौहर भी आ गए। मेरा उदास परेशान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? मैंने तमाम बात बताई तो वो भी परेशान हो गए। अब 30,000 कहां से लाएंगे हम? मेरे शौहर ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें इस महीने का किराया दिया था कि मालिक मकान को दे देना, मगर तुम सुनती ही कहां हो। बेकार में फजूल खर्चियां करती रहती हो। आप कैसी बात कर रहे हैं? वो पैसे हमने अपने बेटे अरमान पर खर्च किए हैं। उसी वक्त अरमान जोर जोर से रोने लगा। मैं तड़प कर अरमान के पास आ गई। बास्केट से अरमान को निकालकर गोद में उठा लिया तो मेरी नजर बास्केट के अंदर गई। बास्केट में हजार हजार के नोटों की गड्डी रखी नजर आई। मैंने अपने शौहर को आवाज देकर उन्हें वो दिखाई। बच्चा हमारे पास 15 दिन से ज्यादा हो गए थे आया हुआ था। मैं रोज बास्केट की सफाई भी करती थी, कभी कुछ नजर ही ना आया था। आज हजार हजार की नोटों की गड्डी रखी थी। मेरे शौहर ने उसे निकालकर गिनती की तो पूरे 1,00,000 रुपए थे। हम दोनों हैरान थे। दूसरे दिन मालिक मकान को 3 महीने का किराया देकर भी 70,000 हमारे पास बच गए थे। ये ख्वाब था या हकीकत? मैंने अरमान को उठाकर प्यार करना शुरू कर दिया। मेरे बेटे,
तुम कितने छोटे हो, मगर तुमने हमारी परेशानी हल कर दी। मेरे शौहर बोले, पहले ये सोचो कि ये पैसे इस टोकरी में कहां से आए, कहीं ये बच्चा जिन का तो नहीं। आप बहुत बुरे हैं, एक तो मेरे बेटे ने आपकी परेशानी हल कर दी और आप इसे जिन कह रहे हैं। वो खामोशी से अरमान को देखते रहे। फिर हमने उन पैसों से रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन खरीद ली, क्योंकि गर्मियों के दिन थे और ठंडे पानी के बगैर रहा नहीं जाता था, और हाथ से कपड़े धो धो कर मेरे हाथ दुख जाते थे। और फिर तो जैसे पैसों का ये सिलसिला शुरू हो गया और हमारा घर चीजों से भरने लगा। अब हम एक पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे थे। मैंने अपना हर मसला अपने बेटे अरमान को बताना शुरू कर दिया। मेरे शौहर चुप और खामोश रहने लगे। बस वो कभी कभी अरमान को बड़ी हैरानी से देखते। हमें बराबर टोकरी से पैसे मिल रहे थे। आखिर हमारे पास इतनी रकम हो गई कि हमने कारोबार शुरू कर दिया, और अल्लाह ने उस कारोबार में इतनी बरकत दी कि वो तरक्की करता रहा। फिर हमने बहुत अच्छी लोकेशन पर घर खरीद लिया, गाड़ी भी थी, नौकर चाकर थे, सब कुछ था। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। अब मेरा बेटा अरमान भी स्कूल जाने लगा था। अब वो बड़ा हो गया था, टोकरी में सो नहीं सकता था, मगर जब तक बास्केट उसके बराबर ना हो और उस पर अरमान का हाथ ना हो, अरमान को नींद ही ना आती थी। तीनों बहनों की आंखों का तारा और मेरी जान था अरमान। वो भी बहनों का दीवाना था। वक्त हंसी खुशी कट रहा था कि अचानक मेरा और मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया। मेरे शौहर मौके पर ही हलाक हो गए, और वो मुझे और अपने चारों बच्चों को छोड़कर अल्लाह ताला के पास चले गए। मुझे भी बहुत ज्यादा चोटें आई, मगर सबसे बड़ा नुकसान मेरा ये हुआ कि मेरी जबान कट गई और मैं उम्र भर के लिए बोलने से महरूम हो गई। अपनी बात हाथ के इशारे से बताती, ऊपर से मेरी रीढ़ की हड्डी में भी गैप आ गया था। इस वजह से मैं बिस्तर की होकर रह गई थी। मेरे बच्चों का क्या हो रहा था, कौन मेरे बच्चों की देखभाल कर रहा था, मुझे कुछ खबर न थी। किस्म किस्म के रिश्तेदार हमारे घर में आकर रहने लगे, जिनकी हमने कभी शक्ल तक न देखी थी, और अब वो हक से हमारे घर और कारोबार की भाग दौड़ चलाने लगे थे। मेरे बच्चे परेशान और खौफ ज़दा थे। अरमान 4 साल का और मीना 5.5 साल की। हुमा 5 और हिना 9 साल की हो गई थी। मैं बिस्तर की होकर रह गई थी। किसी से कुछ कह भी न सकती थी। अपने बच्चों की देखभाल न कर सकती थी। उनके आंसू साफ न कर सकती थी। हाँ, आंसू बहा सकती थी, अपनी मजबूरी पर, अपनी बेबसी पर, बच्चों की लाचारी पर। हमारे रिश्तेदार जो पता नहीं हमारे थे या नहीं, अब हक से हमारी चीजें इस्तेमाल कर रहे थे और मेरे बच्चों का हक मार रहे थे। मैं खामोश रोते हुए सब कुछ देख रही थी। किसी बच्चे को खाना मिला या नहीं, कपड़े गंदे तब्दील न कर सकती थी। स्कूल 1 महीने से नहीं गए थे। अरमान, जिसमें मेरी जान थी, उससे सब कह देना चाहती थी, मगर जबान नहीं थी। सिर्फ आंसू और मेरी बेबसी मेरा हाल अया कर देती थी। एक दिन अरमान मुझसे लिपटकर सो रहा था। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, जिससे अरमान की आंख खुल गई। वो मुझे देखने लगा, फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरी आंख के आंसू साफ करने लगा। मगर मेरी बेबसी जो अरमान से सब कुछ कहना चाह रही थी, मगर जबान कट जाने की वजह से मैं कह ना पा रही थी। इसी बेबसी पर मैं तड़प तड़प कर रोती। वो जितना आंसू साफ करता, मेरे आंसू उससे ज्यादा निकल आते। अचानक अरमान बोला, मामा आप परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। बस पापा के 40वें का इंतजार है, वो हो जाए फिर तमाम झूठे रिश्तेदारों को यहां से निकाल दूंगा। मेरी बहनों की जिम्मेदारी अब मेरी है, आप परेशान मत हो। मैं हैरान थी और इतने साफ लहजे में अरमान को बात करते हुए देख रही थी। वो 4 साल का था अभी, और वो मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें रवानी से कर रहा था। अरमान बोला, मामा तुम हैरान मत हो, पापा समझ गए थे कि मैं एक जिन हूं, मगर आप अपनी मोहब्बत में मुझे पहचान न सकी। मेरी माँ के 10 बेटे पैदा हुए थे उस अस्पताल में जहां मैना पैदा हुई थी। तुम्हारी दुआ, तुम्हारे बेटे की तड़प की वजह से मेरी माँ ने मुझे तुम्हारी झोली में डाल दिया। मगर वो माँ थी, रोज मुझसे मिलने उस बास्केट में आती है। जब जब हमारे घर में परेशानी हुई, मेरी माँ ने उसका हल पैसे की गड्डी की शक्ल में निकाल लिया। मैं आपकी नजर में 4 साल का हूँ, मगर हकीकत में मैं 20 साल का हो गया हूँ। मगर आपका वही 4 साल का बेटा बनकर अपनी बहनों को साया दूंगा। अब आपको आपका सगा बेटा बनकर दिखाऊंगा, मगर आपको मुझसे डर लग रहा है तो मैं आपके पास से दूर चला जाऊंगा। मैंने अपना सर नफी में हिलाकर अरमान को आंख के इशारे से अपने पास बुलाया और उसका माथा चूम लिया। वो खुश हो गया, फिर बोला, बस माँ
तुम्हारा साथ मेरी ताकत बन गया है। इंशाल्लाह आपको इस बिस्तर से उठाकर ही दम लूंगा। मुझे अपने अरमान की बातें सुनकर कि वो एक जिन ज्यादा है, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती थी उस जिन माँ का जिसने अपने 10 बच्चों में से एक मुझे गिफ्ट कर दिया था। उस माँ का बहुत बड़ा दिल था। फिर अरमान ने मेरे सामने एक 20 साल के लड़के का रूप बदला और बोला, मामा, मैं अब इस रूप में लोगों के सामने आकर आप सबको बचाऊंगा और अपनी बहनों के लिए उनके छोटे भाई के रूप में ही रहूंगा। और फिर वाकई अरमान ने तमाम नाम नेहाद रिश्तेदारों से जान छुड़ा दी और मेरी बेटियों की देखभाल इस तरह से करने लगा जैसे वाकई एक बड़ा भाई करता है। मेरी बड़ी बेटी हिना ने पूछा, मम्मा ये कौन है? ये किसके रिश्तेदार हैं? मैं मुस्कुराने लगी। जबान तो थी नहीं, इसलिए बोल नहीं सकती थी। फिर हिना दोबारा बोली, मगर जो भी है, जिसका भी रिश्तेदार है, ऐसा लगता है कि हमारा बड़ा भाई है, जैसे हमारा छोटा अरमान बड़ा हो गया है। फिर दुनिया ने देखा कि कैसे मेरी तीनों लड़कियों की अच्छी जगह शादी हुई। मेरी तबीयत इतनी संभल गई थी कि मैं चल फिर सकती थी। ये तमाम कमाल मेरे अल्लाह और मेरे बेटे अरमान का था। पता नहीं अगर मेरा सगा बेटा होता तो वो ये सब कर सकता था या नहीं, मगर अरमान ने मेरा बेटा होने का हक अदा कर दिया था। इस बात का जितना शुक्र अदा करती उतना ही कम था। आजकल मेरी बेटियां अपनी भाभी लाने के लिए लड़कियां ढूंढ रही थीं। हर रोज एक से एक हसीन लड़की उन्हें पसंद आ जाती। अरमान मेरे पास आया, मम्मा अब वक्त आ गया है आपसे और अपनी बहनों से दूर जाने का, क्योंकि मेरी शादी के लिए लड़कियां देख रही हैं मेरी बहनें। आपको पता है कि मैं एक जिन हूं और मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैंने कहा, अरमान बेटा, तुम किसी जिन से शादी कर लो और बहू बनाकर हमारे घर लेकर आ जाओ। मैंने उसे सलाह दी तो वो बोला, नहीं मम्मा, इस दुनिया में वो नहीं रह सकेगी। आप मेरी बहनों से कह दीजिएगा कि मैं बाहर चला गया हूं और वहीं शादी वगैरह कर ली है। हाँ, मैं आपके पास आता रहूंगा। आपको और मुझको अल्लाह ताला ने जिंदगी दी। कोशिश करूंगा कि अपनी बीवी और बच्चों से भी मिलवाऊं, मगर वादा नहीं कर सकता। फिर अरमान हमसे दूर चला गया। वो अब भी मुझसे मिलने आता है। उसने अपनी बीवी और बच्चों से भी मुझे मिलवाया है। मेरी आप लोगों से इतनी सी अर्ज है, दुआ हमेशा मांगते रहना चाहिए। खुदा किसी न किसी सूरत में हमारी दुआ जरूर कबूल करता है, चाहे किसी रूप में ही कबूल करे। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।